party has not been able to take any action against your Chief Minister in Karnataka? You are presuming something. The party has taken cognizance of the happenings in Karnataka and is dealing with it. And it will be dealing with it effectively. I can assure you that. Advani ji, I have a question. Yes. Congress and the UP has been ridiculing the opposition by saying that if you want, you can go to the midterm polls. Are you prepared for this? I have already replied to that question. Have we demanded a midterm poll? Has the opposition demanded a midterm poll? The midterm poll talk has come officially. I am not going to name the ministers, but I have heard it said by ministers deliberately because they know that a parliament which has been elected just now, 1.5 years back, maybe some of the parties may be keen, may welcome a midterm poll. But why would an average MP who has been elected for 5 years like to curtail his own life after 1.5 years? And it is only scaremongering. It is only to frighten the MPs and to ensure that this kind of unity that has come about, because the unity has not come about on the basis of this government should being thrown out. So far as we are concerned, our response may be different. But so far as the parliament is concerned, I would not regard this as my solution, and therefore the solution that we have offered is, otherwise there are people who tell me why should this government continue, and I also feel that way. हमको परेशानी एक बात से है, वो भ्रष्टाचार से है, और उससे हमको ही परेशानी नहीं है, पूरे के पूरे विपक्ष को परेशानी है, अकेली एनडीए को नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष उसको परेशानी है। और इतना ही नहीं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के सारे जितने मीडिया लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको क्यों लगता है कि सचमुच इस बार का जो ऑपोजिशन का स्टैंड है जस्टिफाइड है। Advani ji, does the isolation of the Congress also means expansion of the NDA under the BJP? That's a different issue altogether. Are you talking to other parties? देखिए, आज आइसोलेशन किसी इशू पर, मान लो कोई इशू है कि जो जेडीयू ने उठाया है और हालत कितनी खराब हुई है, बिहार में कैसी हालत हुई है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। इन अ वे द बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट द जनरल मूड ऑफ द कंट्री, ये तो मामूली बात नहीं। इसीलिए आज मिड टर्म पोल की बात सोचेगा कौन? ये कहने की बात है। मैं अगर कहूँ करो भाई, आखिर तो हमने एक बार 6 महीने पहले इलेक्शन करवाया था और वो हमको महंगा पड़ा दूसरे कारणों से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। हर एक ऑपोजिशन वाले भी कहते थे आप तो जीतोगे, क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, हार गए। और पूरे देश में इसका मैसेज है, लेकिन बीजेपी या एनडीए की क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा कर्नाटक प्रकरण को लेकर के? पब्लिक आपके साथ आएगी। उसका जवाब दे आपको मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आई एम कंसर्न विथ माई ओन क्रेडिबिलिटी मोर देन यू आर कंसर्न, एंड देयरफॉर आई सेड दैट आई कैन टेल यू दैट द मैटर इज बीइंग डेल्ट विथ एंड विल बी डेल्ट विथ इफेक्टिवली। अभी तो हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं और उस कैंपेन में मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप अगर भ्रष्टाचार के इशू को ठीक प्रकार से लाएंगे तो बाकी को भी लगेगा कि ये इशू ऐसा है कि जिस पर देश का भविष्य निर्भर है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल नहीं है। यू कांट हैव करप्शन ऑफ दिस लेवल दैट वी सी टुडे इन द कंट्री। दिस हैज टू गो। Advani ji, Advani ji, here, on your right, Sir, I've listened to, I'll come to you. फिर वही आप सवाल पूछ रहे हैं
मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते ही मैं कई सारी अपनी पार्टी जो मेरे साथ भ्रष्टाचार के इशू पर है, लेकिन वो इस इशू पर मेरे साथ नहीं है कि आज फिर से चुनाव हो जाए, आज फिर से चुनाव हो जाए, इस पर वो नहीं है और मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। Advani ji. Advani हाँ। ji, sir, you know very well, the ADMK General Secretary Jayalalitha's statement was the turning point of this whole issue. But you've not taken ADMK into your group, number one. Number two, DMK was a part of the NDA government. How do you rate the DMK when they were part of your government? Now, why you are after the DMK now? We are not talking of parties. If we are talking about a party, we are talking about the UPA, which has been ruling this country for the last 6 years, and which it may be in alliance with the DMK today, it may be in alliance with another party tomorrow. It was in alliance with the RJD yesterday. Today it's no longer there. Advani ji, एक सवाल है. Don't ask Sorry. me यार. About Jayalalitha ji, I can tell you that we are in touch with that party. That's all. आडवाणी जी, 3 ऐसी नॉन एनडीए पार्टीज हैं जो लोग का रुख आपके इस जो पूरा अभियान है आपका, इसके प्रति बहुत सकारात्मक रुख था उनका, वो आपके साथ आने पर भी विचार कर रही थी. लेकिन 2 दिन पहले जो मोहन भागवत जी का अयोध्या को लेकर एक बयान आया, वो लोग थोड़ा उससे सतर्क हो गए हैं. आप समझते हैं ये दोनों विषय रिलेटेड है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है? I can tell you that our experience over the last several decades has been that there are so many factors affecting different parties. But this particular issue of corruption is an issue on which we expect to get maximum support. But it will take some time. Some are more concerned with this aspect or that aspect of the NDA's approach. These things happen. आडवाणी जी, एक सवाल है, Even before that. एक सवाल है. हाँ। इस देश में घोटाले तो होते ही रहेंगे और बरसों से हो रहे हैं और सीबीआई पर भी विश्वास नहीं रहा, सीवीसी पे विश्वास नहीं रहा, जेपीसी की आप लोग मांग कर रहे हैं. कल आप सत्ता में आएंगे तो फिर कांग्रेस वाले जेपीसी की मांग करेंगे. मेरा ये कहना है कि क्यों न एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाए जेपीसी के लिए, जो अच्छा रहेगा. इस तरह से संसद का बैकआउट नहीं होता रहेगा और संसद चलता रहेगा. इसलिए परमानेंट बॉडी बना दी जाए. देश में जितने घोटाले आएंगे सबकी जांच होगी, चाहे आपके शासनकाल में चाहे कांग्रेस शासनकाल में. देखिए, कोई परमानेंट अगर करनी है तो वो सीवीसी है जो जांच करेगी, और उसमें भी अगर यूपीए इस हद तक जाती है कि सीवीसी को ऐसे को बनाओ जो स्वयं पहले ही कहे कि स्पेक्ट्रम स्कैम की जांच नहीं होगी, तो क्या होगा? It is something much more basic, and therefore, if a fundamental issue has to be touched by me on this occasion, I would say that since 1970, Vajpayee ji and myself, when we were members of a joint parliamentary committee on electoral reform, we had said that in India, what is needed is public funding of elections. We have been pressing for that. It has not happened till now. But I look forward to a day when for public funds, for election funds, parties would not depend on big houses or on corruption or on such matters, and they would be assured their minimum from the state. Public funding is an important issue which we propose to pursue. आडवाणी जी, Friends, that's all that I think. आडवाणी परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं होता है. परमानेंट सोल्यूशन तो पार्टी लीडरशिप की ईमानदारी होती है. ऊपर जो देखेंगे वो होगा. अब हाउ कैन वी फील अशेम्ड टू फाइंड दैट इन करप्शन इंडेक्स वी आर 87th. हेलो. 22 तारीख से आप पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले पर जा रहे हैं और अगर उसके फरवरी में फिर से सत्र शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, पूरे देश में कांग्रेस और यूपीए को आप एक्सपोज करेंगे, लेकिन जब सत्र शुरू होगा तब आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? उसमें तब तय करेंगे. आडवाणी जी, मेरा एक सवाल है. ये जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, वाकई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े वो है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा. तो ये जो पार्लियामेंट को जिस तरीके से रोक दिया, बंद हो गई है, जब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोग, जनता जो है संसद की उपाध्यता पर प्रश्न लगा देंगे, तो ये आखिर ये जिद कब तक रहेगी आपकी?
मैं पूरा बता चुका, तो मैं समझता हूं कि उपादेयता इस्टेब्लिश हुई है और फॉर्मली। अब मैं आप सबसे विनती करूंगा कि भोजन जो है वो ठंडा हो रहा है, मुझे इसकी चिंता है, बाकी सब सवाल जो है वो पूरे पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, निवेदन है कि आप सब लोग बोल रहे हैं यही मंगा दो। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा देर बाद में फोन कीजिए, हम मीटिंग में बैठे हैं, तो बात नहीं करते। साइड दे दो जरा। अरुण कहाँ गए? पहले भी हुआ उसका शंकर का हुआ। नहीं इसमें हम तो भाई भोजन खाएंगे, कोई स्कैम का पैसा थोड़ी खाएंगे। सर अब आप बंद कर दो, बंद